फर्स्ट पार्टिसिपेंट का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था. लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्टिसिपेंट नाउ. आन मलिक, बेटा आर यू रेडी? हाँ, yes sir. Okay, fine, very good. Who are you? Introduce yourself, beta. Sir, my name is An Malik. I am from Hubado district, Gotki. Now I am working as a high school teacher at government. My academic qualification is MA and professional qualification is M8. Fine, beta. अब देखें एक चीज, you introduced really well. It was nice. But if you are asked in an interview that stop it now, or someone interrupts you, तो आपको फिर उसको continue नहीं करना. ठीक है, आप Okay उस sir. वक्त उसको स्टॉप हो जाएंगे और आप नेक्स्ट Okay. क्वेश्चन का आप वेट करेंगे. आप उस नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनेंगे प्रॉपर्ली और उसके बाद आप उसकी तरफ मूव करेंगे. Okay. समटाइम Okay sir. इंटरव्यूअर्स Okay. डू दिस, Okay राइट? sir. सो हाँ, तो Yes. आपने इस चीज का मुजाहरा करना है. अगर आप उनको रोक के बोलेंगे नहीं सर मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे ये बोलने दें, तो आपके ये फिर नेगेटिव रिमार्क्स में चला जाएगा. Okay sir. ये Okay sir. साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं जो अक्सर इंटरव्यूअर्स इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है बेटा? ठीक है सर. ठीक है सर. Okay, okay, but आप मुझे ये बताएं कि आप you did your B at M.Ed, I guess, in 2013, isn't it? Yes. Yes. So Yes. since then, didn't you go for the research? What did you do? Sir, it आप was distant learning. this M.Ed was your distance learning program? You did your Yes. Yes. from Shah Abdul Latif University. I think they Yes sir. offer regular program. It's not a distance learning education program. But I didn't any research. It was distant learning. ओके ओके, चलें. मुझे ये बताएं बेटा कि आपका पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कितना है? सर अकॉर्डिंग टू जो न्यू रिपोर्ट है उसके जो हिसाब से जो 62.8% है पाकिस्तान का लिटरेसी रेट. 62.8. Are you sure with this? यस सर, आई एम श्योर. Okay, which is the country which has the highest literacy rate in the world? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आई थिंक Okay, साउथ कोरिया. आई थिंक साउथ कोरिया. आई थिंक सो. okay, South Korea. इसको जाकर आप सर्च कीजिएगा. यस सर. Right? Okay, tell me beta, what is the difference between lots and hots? Sir, these are the level of the Bloom taxonomy, low order thinking skills and high order thinking skills. Okay. What else? What is the Remember, third level of under what is the last level of lots? lots application. Application. Okay, so Yes. what is the difference between application and analysis? Analysis, सर applications में जो बच्चा अपनी नॉलेज गेन करता है वो उसको एक न्यू सिचुएशन में अप्लाई करने के वो काबिल हो जाता है, वो उसको डिफरेंशिएट कर सकता है. Okay, और okay, जो okay बेटा, चलें. Over to जी. Sir Jasarat now. Okay, so may I know your good name, please? सर आन मलिक. Can you define what CTR? CTR. No, sir. Sorry. Okay. What do you mean by SAMS? Thanks. No, sir. What does mean by PTR? Sorry, sir. What is SNE? Sanctioned of new expenditure. Okay. In which subject you have master's degree? The political science. Political science. Yes. Yes, So sir. can you teach political science in your school? Sir, somehow. In which subject? Sir, in social studies. Only in social studies, or some other subjects are also including the topics and various discussions on political science? Sir, I think so in social studies. Okay, what's core curriculum?
स्कोर करिकुलम सर, इट मीन्स जो भी बुनियादी सब्जेक्ट्स होते हैं, बुनियादी वैल्यूज होती हैं, बुनियादी जो स्किल्स होती हैं जो बच्चे को दिए जाते हैं, वो कोर हमारे करिकुलम में आते हैं। यानी कि 3 आवर्स पर फोकस किया जाता है, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स। Okay, और उसमें what's हमारी कंपलसरी BVA? सब्जेक्ट What is BVA? BVA, आई हैव नो आइडिया सर अबाउट इट। Okay, so over to Sir Adil Sahab now. Yes. Tell me what are the documents required for while following the SAPRA rules? Documents for bid. सर डॉक्यूमेंट फॉर सर उसमें जो है, Public procurement process. यस यस सर, Are the उसमें जो है documents सर, required? सर उसमें जो है बिडर्स को इनवाइट किया जाता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उन्हें जो एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। फिर जो है जो उस पे पूरा उतरता है तो उसके बाद सर वो फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर There are कहा some जाता है list of कि the documents. So you must जी go ahead. What are list of the documents? Not only invitation or instruction, but there are some more list of the documents. Okay. While एडवर्टीज purchasing any furniture. Okay. What what is the procedure to follow the SAPRA rules? सर एडवर्टीजमेंट देंगे हम, उसमें एडवर्टीजमेंट देने के बाद हम कोटेशंस लेंगे। Advertisement in how many news? सर एनी लोकल न्यूज़ पेपर। You see it. How many news? What is the total number of leaves for iddat? सर जो हमने पढ़ा है कि इद्दत के लिए 130 जो है इद्दत के लिए वो लीव्स होती हैं। तो सर लेकिन वो जब आप पढ़ा रहे थे तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कहा था कि वो जो स्पेशल इद्दत के लिए 130 है, लेकिन जो स्पेशल केस में वो 180 हो जाती हैं, लेकिन इद्दत के लिए 130 लीव्स हैं विद Okay, डेथ okay. सर्टिफिकेट। One last question. What is जी सर। the purpose of caste center in schools? सर जिस स्कूल में कोई गजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है तो सर उसका एक जो है प्रॉपर कॉस्ट सेंटर होता है, उसमें उसका डेवलपमेंट बजट और नॉन डेवलपमेंट बजट सारा आता है, जिसमें से वो सैलरीज भी देता है और अपने बाकी एक एक काम काज भी जो वो उसे सर अंजाम देते हैं। तो जो है कॉस्ट सेंटर का एक डीडीओ कोड होता है जो कि उसको विथड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करता है हमारा जो ऑफिसर होता है गजेटेड। तो सैलरीज Okay, भी fine. डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और इम्प्रूवमेंट के काम भी करवाए जाते हैं। Okay, fine. Now I यस सर। allow next one to ask you. Sir Alamgir sir. सर आलमगीर सर, आप 3 सवाल पहले इनसे Assalamu करें। alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। On Malik, on यस Malik, सर। actually you are being interviewed right now. आपने मेंशन किया कि आपने एमएड जामशोरो यूनिवर्सिटी से किया, राइट? नो सर, शाह लतीफ यूनिवर्सिटी से। शाह लतीफ यूनिवर्सिटी, okay. Uh, was there any course introduced related to management styles or leadership styles आपके प्रोग्राम में, एमएड प्रोग्राम के अंदर? सर क्लासरूम मैनेजमेंट थी, स्कूल मैनेजमेंट थी, तो ये कोर्सेज पढ़े हैं हम लोगों ने। School management में, right? Okay. Just want to simply ask, suppose what is the best and most effective management style and why? सर couldn't get your point. What is the most effective management style and why it is most effective? सर आई थिंक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल इज गुड स्टाइल, कि अगर हम डेमोक्रेटिक तरीके से चलते हैं, अपने सारे जो है एम्प्लॉयज को, अपने पूरे स्टाफ को जब साथ लेकर चलते हैं, शेयरिंग ऑफ आइडियाज होती है और जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी जब शेयरिंग होती है तो उसको एक अलग से ऑनर चाहता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशंस। तो सर उससे जो है हर कोई जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटियरली लेने के लिए एग्री हो जाता है कि उनके के अंदर एक पैशन भी आ जाता है और Okay, वो जब एग्री हो similar जाते हैं। question. How would you involve your teachers and staff in decision-making process at the school? सर वी आर डेमोक्रेटिक स्टाइल, वी आर How डेमोक्रेटिक would you involve मैनेजमेंट। your staff? So, okay, you are in democratic process, but specify more in यस like in operation styles. How would you involve them in your decision-making style? कैसे involve करेंगे staff को? सर उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनके साथ जब उनके साथ मीटिंग करेंगे अपने आइडियाज बताएंगे, अगर कोई चीज करनी है हम्म, तो
तो उनसे भी जब आइडियाज उन पे लेंगे और उन्हें कंसिडर भी करेंगे, अगर उनमें से बेस्ट आइडियाज हो जाते हैं, सर हर चीज तो नहीं है ना, चाहे कोई HM है वो भी हर चीज नहीं, जब हम उनसे उनके आइडियाज लेंगे उनमें से हो सकता है कुछ बेहतर आइडियाज हो जाएं, तो हम जब उन आइडियाज को कंसिडर करेंगे तो जो डिसीजन लेंगे तो वो उनकी इन्वॉल्वमेंट उन डिसीजंस में हो जाएगी। All right. Have you studied the national curriculum, right? रैशनल करिकुलम? Hello? यस सर। Yes, national curriculum. So how would you implement the national curriculum? I mean, how will you break down कि national curriculum directly implement तो नहीं होता, तो आप कैसे break down करेंगे ताकि वो implement हो जाए step by step? सर जैसे इसको लेके चला जाता है ग्रेड वाइज उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जब नहीं, ग्रेड्स मुझे पूरे होंगे तो आप ऑपरेशंस बताया ना, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि आप डायरेक्टली करिकुलम को लाके इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर भी द प्रोसीजर्स टू सर इम्प्लीमेंट जी द जी करिकुलम। जी 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 सर उसमें ये करेंगे, जब इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आएगा तो सर उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, वर्किंग डेज को देखकर तो किस क्लास में हमने कितने चैप्टर करने हैं, उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी आ जाएंगी, उसमें एक्टिविटीज भी आ जाएंगी कि हमने उसको कैसे पूरा करवाना है और किस ग्रेड में कितने चैप्टर रखने हैं, और ड्यूरेशन को भी मद्देनजर रखना है, और जिस टाइप का करिकुलम होगा उस ओके, हिसाब से मेथोडोलॉजीज भी रखनी है और एक्टिविटीज को भी ऐसे ही रखना है। just I think the last question. यस सर। Can you just tell me about the difference between strengths and benchmark? क्या डिफरेंस है स्ट्रेंथ्स और बेंचमार्क में? क्या डिफरेंस है? सर बेंचमार्क बता सकती हूँ, बेंचमार्क में डिफरेंस स्टैंड्स में नहीं बता सकती, मुझे भी थोड़ा सा क्लियर याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैंने कहीं पढ़ा था कि कहीं पे जो है जैसे हम लोग कहीं सेट करते हैं कि जैसे बेंचमार्क्स सेट करते हैं तो किसी सब्जेक्ट्स में वो स्ट्रैंड्स होते हैं, आई थिंक किसी साइंस सब्जेक्ट में वो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो वैसे वो आम जो है वो बेंचमार्क्स होते हैं। अगर बेंचमार्क्स कहते हैं तो मैंने चलिए क्लियर ये कर बता दें, सकती हूँ कि स्टैंडर्ड में क्या, स्टैंडर्ड और SLOs में क्या फर्क है? सर जिसको हम क्लासरूम लेवल पे और ग्रेड्स में सर जिसको हम अचीव करते हैं वो हमारे SLOs हैं, और जो और फिर जब हम लेवल के हिसाब से जो हम अचीव करते हैं, जैसे 1 to 3 है, फिर 3 to 5 है, 6 to 8 है, तो हमारे बेंच वो मार्क्स है क्या है, वो जैसे जो, ग्रेड। अच्छा कितने लेवल्स होते हैं, कितने लेवल्स हैं पर हमारे करिकुलम? पास 5 लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं। 5। तो ये 5 लेवल्स को क्या कहते हैं? आई मीन व्हाट इज द प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड वर्ड? सर आई थिंक वी कैन से बेंच चलेगा, मार्क्स। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक अच्छा बेटा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान और इस्लामिया से। तो यू आप जी सर। काइंडली मुझे ये बता सकती हैं कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सिक्स्थ जो वाइफ है उनका नाम, कैन यू टेल मी द नेम, सिक्स्थ वाइफ? नो सर, आई एम नहीं, नॉट श्योर। चलें, अब मुझे आप ये बताएं कि विच सूरा इज द नेम ऑफ होली वार? कौन सी सूरा है होली वार पे? नाम आप बता सकती हैं? अजाब। वेरी गुड। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन आपने सुना होगा, वो टाइटल किसको दिया यस गया? सर। सर उम्मुल मोमिनीन का टाइटल जो दिया गया है वो आई थिंक हजरत आयशा को दिया गया। चलें, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान स्टडी में साइमन कमीशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बताएं कि कौन से ईयर में हुई थी साइमन कमीशन? साइमन कमीशन आई थिंक 42, आई थिंक सो। चले, मैं ऑप्शन देता हूं आपको। जी जी 1925, 26, 27, 28? सर 27 है आई थिंक। 27, वेरी गुड। अच्छा, वार ऑफ इंडिपेंडेंस हर किसी बच्चे बच्चे को पता है कि कौन से साल में हुई थी? सर 1857। वेरी गुड। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, और कोई कैंडिडेट? थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट?